بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے عوامی فلاح کے ایک اور بڑے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایل ڈی اے پلازا کشمیر روڈ پر ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کیا۔ کہتے ہیں پورے پنجاب میں اب کہیں بھی مینول رجسٹری نہیں ہوگی، مینول رجسٹری ختم کر دی گئی ہے۔ لاہور میں مزید 2 ای رجسٹری آفس بنیں گے۔ پورے پنجاب میں 11 سینٹر بننے جا رہے ہیں۔ ای رجسٹری سے حکومتی ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنقید سے میرے کام پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر میں تنقید پر توجہ دوں تو پھر کام نہیں کر سکتا۔ یہ آسان تھا کہ آفس آؤں، چائے پی کر گھر چلا جاؤں۔ الحمدللہ آج یہ ای رجسٹری آفس کی انوگریشن ہو گئی ہے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی کہ پورے پنجاب میں کسی بھی جگہ اب مینول رجسٹری نہیں ہو رہی، اور ہم نے اپنی 31 دسمبر ڈیڈ لائن رکھی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ 1 سے اب تک 2,21,000 ای رجسٹریاں ہو بھی چکی ہیں۔ لاہور میں بھی ٹوٹل اسی طریقے سے مینول رجسٹری کو بین کر دیا ہے اور صرف ای رجسٹری ہو رہی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لاہور میں کیونکہ ایک ای رجسٹری آفس ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ لاہور بہت بڑا ہے، تو ہم نے ایک شالامار ٹاؤن میں اور ایک رائیونڈ میں وہاں پہ ای رجسٹری آفس ڈی سی صاحبہ کو ٹاسک مل گیا۔ انشاءاللہ 31 جنوری کو وہ باقی دونوں آفیسز کی اوپننگ کرائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ بینک آف پنجاب کا ایک چھوٹی سی سب برانچ بھی بن گئی ہے اندر، اور اگلے جو آفیسز بن رہے ہیں اس میں نادرا کا بھی آفس بنے گا ساتھ، اور 11 سینٹرز پورے پنجاب میں اس طرح کے بننے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری قسم کی شکایات آتی تھیں۔ اس میں 3 سب رجسٹرار آفس ہیں اس کے اندر ہی۔ لوگ ٹیکس کو چوری کرنے کے کئی طریقے نکالتے تھے۔ میں آج سے چند ماہ پہلے میرے خیال میں چند لوگ آپ میرے ساتھ ہی تھے، داتا گنج بخش ٹاؤن کے ای رجسٹری آفس میں گیا تھا اور وہاں پہ اتنی بری حالت تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک پرانا سا دفتر تھا، نہ بیٹھنے کی جگہ تھی، نہ کوئی مطلب برا تھا۔ اسی دن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں کریں گے، اور ٹیم نے بڑی محنت کی ہے، SMBR نے بہت محنت کی ہے، اور یہ پورے پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کرانے میں انہوں نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے، اور ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر یہ انشاءاللہ تعالی باقی آفیسز بھی بنوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کا آرام، لوگوں کے ساتھ فراڈ ہونے والا سارا طریقہ ختم ہو جائے گا، اور گورنمنٹ کے ریونیوز میں اضافہ ہوگا۔ ڈیلی مانیٹر کریں۔ اب اگر آپ نے اپلیکیشن دیا ہے تو ڈی سی لاہور SMBR کے پاس ڈیش بورڈ پہ آ رہا ہے کہ کتنی، جس طرح FIR کا ایشو ہے کہ FIR کتنی پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے اب یہ بھی سامنے ہوگا۔ یار میری بات سنو، نہ تو مجھے پروٹوکول سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے، یہ ذہنیت کی بات ہے۔ میں ویسے دیکھیں تنقید تو پھر بہت ساری چیزوں پہ ہوتی ہے، تنقید کا مجھے ایشو نہیں۔ اگر میں تنقید کے اوپر بیٹھ جاتا نا تو میں کوئی کام نہ کر سکتا، پھر میں بیٹھا صبح آ کے چائے پیتا اور گھر چلا جاتا، پھر یہ طریقہ کار تھا، تو میں اس تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ہسپتالوں کے لیے تعمیراتی کام اور ادویات کے لیے اضافی بجٹ منظور۔ حکومت نے ادویات، میڈیکل آلات، تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز منظور کیے۔ نگران حکومت نے 11.50 ارب کی منظوری دے دی ہے۔ علی رامی ہمارے ساتھ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ علی رامی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ محکمہ صحت کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ان کو اضافی بجٹ جو ہے وہ درکار ہے، جس میں ہاسپٹل کا اکوپمنٹ، میڈیسن، اور اس میں جو تعمیراتی کام جو ہے وہ ریویمپنگ کا ہاسپٹلس کے اندر جاری ہے، اس پر نگران حکومت کے سامنے یہ معاملہ جو ہے وہ رکھا گیا، کیونکہ اس پر فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آبزرویشن کے سے پہلے بھی بہت زیادہ بجٹ جو ہے وہ ہیلتھ کے اوپر ایلوکیٹ کیا جا چکا ہے، لیکن جو کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی ترجیحات ہے کہ ہاسپٹلس کے اوپر جو ہے وہ خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے، ان کے ریویمپنگ کے اوپر، وہاں کے جو میڈیکل آلات ہیں، اکوپمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو اشیاء ہے اس پر فوکس جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اس پر نگران حکومت کی جو ہے انہوں نے فوری طور پر اس کی اپروول جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ایک اجلاس جو ہے وہ بھی ہوا تھا، تو اس میں 11.5 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا گیا۔ اس میں 5.5 ارب روپے میڈیسن کے لیے جو ہے وہ اپروو کیا گیا، جبکہ 3 ارب روپے کا پیکج جو ہے وہ اپروو کیا گیا۔
मेडिकल इक्विपमेंट के लिए और दीगर सहूलियात के लिए, और साथ ही 3 अरब का बजट जो है वो अप्रूव किया गया। हॉस्पिटल्स के अंदर जो ये रिवैम्पिंग का काम जो है वो जारी है, उसके लिए ये बजट जो है वो जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। अब इस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी हदायत जारी की कि जल्द से जल्द ये बजट जो है वो महकमा सेहत के हवाले किया जाए ताकि हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी बेहतरी के लिए जो काम जारी है वो रुक ना पाए। जी अली रामी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए हुकूमत पंजाब का एक और प्लान तब्दील। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने बरकत मार्केट से लाहौर केनाल की जानिब फ्लाईओवर की बजाय अंडरपास बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। दुर्र नायाब हमारे साथ है, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, अब जो वाई जंक्शन है बरकत मार्केट का, उस पर ख़त्मी डिज़ाइन फ़ाइनल हो गया और तमाम कंसेंसस के बाद उसका PC1 तैयार कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के बोर्ड में उसकी PC1 की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद इस पर बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मुतअद्दिद डिज़ाइन जो है वो सामने आए, 5 से 6 7 ऐसे डिज़ाइन थे जिस पे बहुत तफसीली कंसेंसस डेवलप किया गया। कभी अंडर पासिस आते रहे तो कभी फ्लाईओवर, कभी ये भी कहा गया कि बरकत मार्केट वाई जंक्शन जो चौक है उस पर जिना हॉस्पिटल से गुलबर्ग की जानिब अंडरपास जो है वो तजवीज़ किया गया। कभी ये तजवीज़ किया गया कि बरकत मार्केट से जो नहर की जानिब जा रहे हैं वहाँ पे फ्लाईओवर दे दिया जाए। कभी ये कहा गया कि जो इसके फ़ेज़ 2 में ठोकर न्याज बेग से ट्रैफिक आ रही है उसको फ्लाईओवर के ज़रिए नहर से पास करवा के बरकत मार्केट की तरफ तोड़ा दिया जाए। इसी तरह के बहुत सारे 7 से 8 ऐसे प्लान थे जो नेस्पा की तरफ से तजवीज़ किए गए। फ्लाईओवर पे कंसेंसस इब्तदाई तौर पे डेवलप हो गया था, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन से CBD हुकाम ने लेटर लिख के इजाज़त भी मांगने के लिए फ्लाईओवर तक लग जाती हैं, कलमा चौक अंडरपास तक लग जाती हैं, वहाँ पे इस पे रिलीफ मिलेगा। इस पे तकरीबन 1.5 अरब रुपये लागत का तखमीना लगाया गया और आइंदा हफ्ते बोर्ड के इजलास में इसकी बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। CBD हुकाम के मुताबिक अब ये हतमी तौर पे वज़ीर आला इसी डिज़ाइन इसी प्लान की मंजूरी। जी दुर्र नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। NA 132 शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। ट्रिब्यूनल ने RO का शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर रखा है। तफसीलात जान लेते हैं समात के हवाले से मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी है। जस्टिस साल हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने शहरी शाहद और कज़ई की दायर इलेक्शन अपील पर समात की तो रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड समेत पेश हुआ। ताहम जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। गुज़श्ता रोज भी शाहद और कज़ई पेश नहीं हुए थे, जिसपे इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने मियाँ शहबाज शरीफ के हल्का NA 132 में उनके कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ जो दायर अपील थी उसको खारिज कर दिया। और इसपे जो रजिस्ट्रार ऑफिस था इसने भी इस पे इतराज़ ऐड किया था कि दरख्वास्त गुजार मुतसरफ भी नहीं है। तो आज इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने भी जो रजिस्ट्रार ऑफिस का इतराज़ था उसको बरकरार रखते हुए ये अपील खारिज कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ से अपडेट कर रहे थे। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका। तलब और रसद में फर्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होने लगी है। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और मजीद आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड आज 2500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 2250 मेगावाट है। इस तरह 250 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा ने बताया है कि लेस्को की जानिब से जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक शहर में 2 घंटे, जबकि मज़ाफ़ात और जहाँ पे नुकसान ज़्यादा है यानी कि बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है वहाँ पे 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन बाद ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर मौसम की सूरत हाल की वजह से धुंध और स्मोक की वजह से ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और फ़नी ख़राबियों की वजह से जो बिजली की बंदिश है उसमें घंटों जो है वो सामने आ रही है, जिस पर भी सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। तहम अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे, मज़ाफ़ात और दही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है। तहम 50 से ज़ायद ऐसे भी फीडर्स हैं
जहां पर सिस्टम ओवरलोड होने की वजह से गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिफ्रा। अब बात करेंगे पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के मामले पर। पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीम ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। गवर्नर पंजाब ने आर्टिकल 128 की शिक 1 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया। राव दिलशाद हुसैन हमें डिटेल्स बताएंगे। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 128 की शिक 1 के तहत सरकारी मुलाजमीन के तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 में जो है वो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जो कि अब पंजाब सिविल सर्वेंट्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 होगा। ऑर्डिनेंस में सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक शिक में तरमीम की गई है। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत हुकूमत और सरकारी मुलाजिम दोनों पेंशन अकाउंट में हिस्सा डालेंगे, जो कि पेंशन फंड में सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट की जा सकेगी। आपकी बताएं कि इस हवाले से ये भी तरमीम की गई कि रिटायरमेंट पर फंड में जमा की रकम को दोबारा इन्वेस्ट करके सरकारी मुलाजिम की माहाना पेंशन की अदायगी को आसान बनाया जाएगा, जबकि ऑर्डिनेंस की जारी करदा तारीख या इसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर मुतय्यन करदा कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जो है वो उसका इतलाक होगा। ताम 2023 इस ऑर्डिनेंस के इजरा से कबल जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं उन मुलाजमीन की पेंशन या जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। सूरज बदस्तूर गायब है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं कोमल असलम। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि सूरज मियां मंजर से गायब है, इसलिए फील लाइक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सर्द महसूस की जा रही है। टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिशों से मुताल्लिक कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। मौसम मज़ीद सर्द होगा और इसी के साथ साथ जो है वह खुश्क सर्दी लाहौर शहर के बच्चों को बहुत सी वबा में मुब्तला कर रही है। तो लाहौरिया जो है बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करें, गर्म मलबूसात जेबतन रखें और गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वह इज्तनाब करें। वही हम ठंडी हवाओं के हवाले से बात करते हैं तो हवाएं जो है मज़ीद ठंडी हो रही हैं और ये मज़ीद ठंडी होती चली जाएंगी। इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन जो है वो गर्दिश कर रहा है, जिसका ये कहा जाता है कि ये महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है कि पाकिस्तान में जो 13 जनवरी से 15 जनवरी तक मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा और सर्दी की शिद्दत मज़ीद लहर जो उसकी बढ़ेगी। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस रिसाल हसन सईद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने समाअत की है। अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन सैयद हैं, जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्का N 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। दरखास्त गुजार शाहद और कुजई अदालत में पेश नहीं हुए और गुज़श्ता रोज भी ये पेश नहीं हुए थे। रिटर्निंग अफसर जो हैं वो आज रिकॉर्ड समेत पेश हुए हैं और हल्का N 130 से नवाज शरीफ का कागजात नामजदगी शाहद और कुजई ने चैलेंज किए थे और कुछ देर पहले मियां शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ शाहद और कुजई की जो अपील के इलेक्शन में वो भी खारिज कर दी थी और अब ये मियां नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ जो अपील है इसको भी दरखास्त गुजार के अदम हाजिरी की बुनियाद पे खारिज कर दिया गया है। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए।